below, under, beneath. On the board you can see three words which are called prepositions and they are often being interchangeably used. कहने का मतलब है बोर्ड पे तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं below, under, beneath, जिनका एग्जैक्ट यूज नहीं पता होता है कि कौन सा वर्ड या कौन सा preposition कब लगना है, ठीक है? क्योंकि below and under का मीनिंग जो है it is almost same. If I put an equal to between below is equal to under, then I would say that it won't be incorrect. But there is a slight difference between the two. इसका usage हम लोग सीखेंगे. So let's begin. The first thing that you need to keep in mind is that below, under and beneath are prepositions. Prepositions क्या हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? In, on, at, under, above, below, underneath, beneath, between, among, amongst. What are these? These are prepositions, ठीक है? Which tells us the exact location or position of a thing that is being talked about in a sentence, ठीक है? Exact location बताते हैं. बात करते हैं below की. Below आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी measurement की बात होगी, ठीक है? Whenever we will talk about measurement, in such cases we will always use the preposition below. Never use under. I will tell you with the help of examples. I will explain it to you with the help of examples. लेकिन अभी के लिए आप समझिए, जब भी कोई measurement की बात होगी, है ना? Marks होंगे या कोई भी चीज measure होगी, कम ज़्यादा में, तब below का इस्तेमाल करेंगे. Also it talks about certain levels, है ना? When things are kept in vertical distance, vertical space, ठीक है? Levels या heights की जब बात होगी, vertical, ठीक है? This is vertical, this is horizontal, है ना? When certain thing is kept in a vertical position, you know, it is falling under the vertical position of a thing, तब हम इस्तेमाल करेंगे below का. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा. पहले बात करते हैं, मैंने बोला जब भी measurement की बात होगी, है ना? जब भी measurement की बात होगी, आपका preposition below आएगा. Let us see this example. If I say rainfall this year is dash normal, कि जितनी रेनफॉल होती है हर साल, इस साल रेनफॉल क्या है? नॉर्मल से काफी कम है. तो इसमें हम मेजर भी तो कर रहे हैं ना कि हर साल इतने सेंटीमीटर या इतनी रेनफॉल होती है, इस साल कम हुई, तो इसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा below, ठीक है? या if I give you one more example that Rohan's marks, ठीक है? या Rohan's percentage या marks ले लीजिए. Rohan's marks are dash average, कि जितने एवरेज मार्क्स होते हैं 50 to 60% हुआ, 60 to 70% हुआ, उससे कम है. अगेन मेजरमेंट की बात हो रही है ना? तो दोनों ही केसेस में क्या आएगा? below, ठीक है? या एक और एग्जांपल आप ले लीजिए. The temperature will go dash 15 डिग्री सेल्सियस, कि जो तापमान है कमरे का या एटमॉस्फेयर जो भी है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा. तो यहाँ अंडर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है? below. अब बात करते हैं लेवल, हाइट्स, वर्टिकल डिस्टेंस. अगर मैं बोलूं he lives dash me, ठीक है? वो मेरे नीचे रहता है या वे मेरे नीचे रहते हैं, तो इसमें below आ जाएगा. You will never say under या I live under them, I work, he lives under me. No, below क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे फिर आप बता रहे हो, लेवल की बात कर रहे हो कि he lives below me. That means you might be staying at the second floor and the person you are talking about must be staying, he could be at first floor, he could be staying at the ground floor. कि आप सेकेंड फ्लोर पे हैं और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपसे नीचे रहता है, ठीक है?
एक और एग्जांपल लेते हैं। He placed lamp dash almirah, उसने अलमारी के नीचे लैंप रख दिया। ठीक है, तो इसमें भी आपका बिलो आएगा क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। आई होप द यूसेज ऑफ बिलो इज क्लियर आफ्टर नाउ. Now moving to next preposition which happens to be under, and it is often, you know, there's I won't say slight, but the confusion is a huge. Okay, there's huge confusion between below and under. When do we use under and when do we use below? Talking about under, you know, under always tells you about the exact location or position of a thing that is being talked about in a sentence. ठीक है, ये आपको लोकेशन बताता है अंडर, या आपको बताता है पोजीशन। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? जब एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिलेगी, है ना, या आप एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में बात करेंगे, हमेशा अंडर का यूज करिएगा, नेवर यूज द प्रीपोजिशन बिलो। ठीक है, एग्जांपल देके समझाती हूँ। द कैट is sitting dash table। अब इसमें जो बिल्ली है वो एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई है कि टेबल के नीचे बैठी है ना, तो इसमें अंडर आ जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। द कीज आर केप्ट डैश द पिलो। तकिया के नीचे चाबियां रखी हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेंटेंस? यू आर बीइंग very specifically told about the position of the keys, that the keys are kept under the pillow। ठीक है, आपको लोकेशन, आपको पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, किसकी? चाबियों की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अंडर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे पोजीशन की। अगर मैं बोलूं आई वर्क डैश हिम, मैं उसके नीचे काम करता हूं या मैं उसके नीचे काम करती हूँ। नीचे काम करने का मतलब है हायरार्की में, है ना, ऑफिस में जो भी रैंक्स है उनमें जिसके बारे में बात हो रही है वो अपर स्लॉट में है, मैं उससे नीचे काम करता हूँ, मतलब मैं जूनियर हूँ और वो सीनियर है मेरा। ठीक है, इस कंडीशन में आप हमेशा अंडर लगाएंगे, बिलो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें मेजरमेंट तो हो नहीं रहा है ना, मेजरमेंट हो रही है, तो आई वर्क अंडर हिम। ओके, आई होप द डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर इज क्लियर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू बीनीथ। ठीक है, बीनीथ में क्या होता है? देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एंड वन थिंग इज काइंड ऑफ केप्ट सीक्रेटली और इट इज हिडन अंडर इनटू द अनदर थिंग। दो केसेस होते हैं। पहला सिचुएशन होता है व्हेन वन थिंग इज रैप्ड और हिडन इनटू अनदर। ठीक है, दूसरा कंडीशन आपका आता है कि जब आप लेवल्स की बात करेंगे, है ना, लेवल्स की आप बात करेंगे। बाय लेवल आई मीन, पहले इसका एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि अगर मैं बोलूं दैट शी मैरिड डैश हर स्टेटस, कि उसने अपने स्टेटस मतलब आपका स्टेटस कैसे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई और हाउ डू यू कैलकुलेट योर स्टेटस? बाय थ्रू योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ठीक है, आपका कितना एक्सपेंडिचर है, आपकी कितनी अर्निंग है, उसी से तो आपका स्टेटस पता चलता है ना। तो उसने शी मैरिड बीनीथ हर स्टेटस। ठीक है, एक लो लेवल में जो उसका सोशल स्टेटस है उसमें सामान्य स्टेटस में नहीं शादी करके किसी निम्न घर में शादी करी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बीनीथ इस्तेमाल हो जाएगा। या एक और एग्जांपल दें, इट इज
dash his status to ask for money, है ना, ये उसके स्टेटस पे नहीं है कि वो किसी से पैसे मांगे, तो यहां आ जाएगा इट इज beneath his status to ask for money। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने ये लेवल्स की बात की थी, ये एग्जांपल जो मैंने लिया है, when one thing is wrapped into or it is hidden into another thing, ठीक है, I could see his muscles dash टी-शर्ट, ठीक है, मुझे उसकी मसल्स टी-शर्ट के अंदर भी दिख रही थी। ठीक है, किसी भी पर्सन के बारे में बात हो रही है, मसल्स है, मस्कुलर पर्सन है वो, तो मसल्स क्या है, दे आर काइंड ऑफ दे आर हिडन इनटू हिज टी-शर्ट, टी-शर्ट ने उनको ढक रखा है, हाइड कर रखा है, बट स्टिल दे आर विजिबल, आई कुड क्लियरली सी देम। तो यहाँ पे आप beneath का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या आप एक और एग्जांपल लें, he had hidden pistol dash his coat, उसने अपने कोट के अंदर पिस्टल छुपा रखी थी। तो इस कंडीशन में भी ना अंडर लगेगा ना बिलो लगेगा, क्योंकि यहाँ कोई चीज हिडन है, दो चीजों की बात हो रही है, पिस्टल और कोट की, और जो एक चीज पिस्टल है दैट इज हिडन इनटू कोट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा beneath। ठीक है, I hope the difference between the three is clear. That is why I am giving you sentences and examples, so that you get an idea, crystal clear idea, when to use below, under and beneath. If you have more doubts, अभी भी confusion है, you can always ask me in the comment section. Okay, thank you for watching and being with me.